تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، پیار سے مرتبہ درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، آج آپ جس جلسے کے اندر تشریف فرما ہے، میں اپنے تمام نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں، اور وہ پیغام اس بات کی کہ آج دیکھا جا رہا ہے زمانے کی نبض پہ جب آپ کی نظر پڑے گی تو ہر کس و ناکس آہو فغاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج دیش پریشان ہے نیتا سے اور باپ پریشان ہے بیٹا سے۔ دیش پریشان ہے نیتا سے، دیکھ رہے ہیں نا حالات، توجہ فرمائے، اور آج باپ پریشان ہے اپنے بیٹا سے۔ لیکن آج کہ اس سرکار بغداد کانفرنس میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک خوبصورت پیغام لے کر جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے حوالے ہو رہا ہوں اور آپ میرے حوالے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا، پروردگارا میں نے یہ دیکھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کیا وہ اسی میں سے۔ لیکن پروردگار میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر ہی میرے جنت کے ہم جنسی کو اگر بتا دیتا تو تیری بڑی عنایت تیرا بڑا کرم ہوتا، یعنی کل جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ آپ سب کی توجہ ہے نا؟ ہمارے نوجوان بچوں کو کرسی نہیں ملی ہے گا، اگر کرسی زیادہ پیچھے ہو گئی ہے تو تھوڑا سا آگے گھسکا لے آئیے، ہے نا، تھوڑا سا بیٹھ جائیے کرسی پر۔ میں نہیں دکھ رہا ہوں، سب کو دکھ رہا ہوں نا؟ اب دیکھتے رہیے، اس لیے کہ اس وقت اس اسٹیج پہ الحمدللہ جتنے ہمارے خطبہ اور جتنے ہمارے نقبہ بیٹھے، ان سے بڑھ کر خوبصورت اور کوئی نہیں ہے۔ چلیے، خطبہ موجود ہیں الحمدللہ، اللہ انہیں موجود رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک نقیب آئے تھے، معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، اور آنے والے نقیب کی ابھی تک حاضری نہیں ہو سکی ہے، اللہ کرے کہ حاضر ہو جائے۔ آ چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اسٹیج پہ بھی آ جائیں گے۔ کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ چلیے، میں بالکل شروع ہو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، معروض پیش کیا، ابتدا کیا، ایک میرے پروردگار عالم ریکویسٹ کیا، پرارتھنا کیا، گزارش کی کہ میرے پروردگار عالم تو مجھے دنیا کے اندر بتا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو جنت میں میرے ساتھ کس کا حشر فرمائے، کس کا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، میرے کلیم فلاں گاؤں میں چلا جا، وہاں پہ ایک چوراہا ہے، ممرکا گاؤں کا ایک چوک ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اس چوک پہ چلا جا، اور وہاں پہ ایک گوشت بیچنے والا گوشت بیچ رہا ہے، وہی تیرا ساتھی۔
मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले। आखिर उस गोश्त बेचने वाले में खूबी क्या है? तवज्जो है ना आपकी? उस गोश्त बेचने वाले में खूबी क्या है कि उसका हश्र अल्लाह ताला कल मैदान माशर में मेरे साथ, मैं तो नबी हूं और मेरे साथ एक गोश्त बेचने वाले का हश्र, आखिर उसके अंदर कमाल है क्या? मैं जरा पता करूं। अब वो पता एड्रेस तलाशते 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 ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस चौक पे, और उस नौजवान को आपने मुलाहजा फरमाया कि कोई गोश्त की दुकान पे बैठा गोश्त बेच रहा है। सुबह से शाम हो गई, एक मर्तबा कोई जिक्र नहीं, न जुहर अदा किया, न असर अदा की, और न कोई जिक्र फिक्र, न कोई तस्बीह व तहलील। जब शाम होने को आई, वो अपना बुरिया बिस्तर समेटा और वो अपने घर को चलने की तैयारी किया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं कि जब मैंने देखा कि अब तो यहाँ से ये अपना रास्ते सफर बांध लिया, अब यहाँ से ये जाने की तैयारी कर लिया, ये अपने घर को जा रहा है और यही मेरा कल मैदान महशर में साथी होने वाला है। इसी के साथ मेरा परवरदिगार आलम कल बरोज़े क़यामत मेरा हशर फरमाने वाला है। मैंने तो उससे कुछ देखा नहीं और इससे कुछ पाया नहीं, उसको कुछ समझा नहीं। अल्लाह अकबर, उसके पीछे चले और कहने लगे कि ए जनाब, मैं एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह अल्लाह, और रात होने जा रही है और यहाँ मेरा कोई और ठिकाना नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज क़याम आप ही के घर हो जाए, आज क़याम आप ही के घर हो जाए। वो नौजवान, कौन नौजवान? अब जहन में रखिए, गोश्त बेचने वाला नौजवान। उसको क्या बोलते हैं? कोई आदमी चिक बोलता है, कोई आदमी कसाई बोलता है ना भाई, ठीक है बोलते है ना? आप लोग क्या बोलते हैं? कसाब, वो भी कुरैशी भी बोलते हैं। नहीं, भर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जाहो जलाल को नौजवान देखा तो वो देखते रह गया और वो समझने पे मजबूर हो गया कि ये कोई आम आदमी नजर नहीं आ रहा, इंसानी शक्ल सूरत में आम इंसान नहीं है। बात भी सही है, वो एक अल्लाह के नबी, लेकिन चेहरे की नूरानियत को जब नौजवान ने देखा तो वो फौरन आमन्ना सद्दकना, आपकी दावत कबूल कर लिया। कहा कि हाँ जनाब, आप मेरे घर तशरीफ लेके चले और आज मेरे यहाँ मेहमान। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को लेकर के वो नौजवान अपने दरवाजे के पास लाया। दरवाजे के बाहर एक साहिबान, जिसको हम आप झमड़ा बोलते हैं ना, झोपड़ा बोलते हैं ना, छप्पर बोलते हैं, छप्पर के अंदर हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बैठा दिया और घर के अंदर आया। अपना बोरिया बिस्तर रखा, छुरा कैंची रखा, दाब वगैरह सब रखा, माँ की बरगाह में हाजिर होता है। अब जरा सा मुलाजा फरमाओ नौजवानों, यही मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस से कि आज जब यहाँ से जाओ तो अपने माँ बाप का वफादार बन करके जाओ। आज यहाँ से जब जाओ अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बन करके जाओ। आज यहाँ से जब उठो तो ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह मैं अपने बाप को भी सीने से लगाऊंगा और अपने माँ को भी गले गले लगाऊंगा। ये अहद करके यहाँ से उठना नौजवानों। आज मैं सिर्फ अपने नौजवानों से खिताब कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी खिताबत है, लेकिन यकीन जानो कि अगर मेरी इस गुफ्तगू को अपने दिल की डायरी में नोट कर लिया तो खुदा की कसम मैं बोल रहा हूँ, तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरा बरज़ख भी समझ जाएगा और तेरा महशर भी कामयाब होता हुआ। अल्लाह अकबर। जब आपने मुलाहजा फरमाया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दरवाजे के बाहर बैठा दिया और घर में आया उस माँ के पास। अब उसकी माँ की सिफत जरा मुलाहजा फरमाओ, बिल्कुल इतनी ज़ईफ़ा कि वो अपने से बिस्तर पे उठ के बैठ भी नहीं। अब तवज्जो आपकी है बाबू, जरा समझ जाओ थोड़ी देर। हाँ, थोड़ा सा उठक बैठक बंद कीजिए। आप लोग इधर आना जाना नहीं कीजिएगा, है ना। कोई अगर हाजत है थोड़ा देर के लिए आप लोग बर्दाश्त कीजिए, है ना। 10 मिनट के बाद अपनी हाजत से फारिग हो जाइएगा। बस 10 मिनट मेरी खिताब, 10 मिनट मेरी गुफ्तगू समाप्त किया। है ना सैयद साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सो नहीं रहे हैं, आप सो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। इसलिए सैयद साहब आप हैं, आपको बेदार रहना जरूरी है। इसलिए कि सबके कश्ती के आप खुदा आप ही हैं, आप ही अब अगर सो जाएंगे तो अब से पहले हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए आपको बेदार रहना बड़ा जरूरी है। अब अंदर गया, अपने उस ज़ईफ़ माँ की बरगाह में अर्ज करने लगा, माँ
दरवाजे के बाहर एक मेहमान को बैठा के आओ। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा कि बेटा मेहमान नवाजी का ये तरीका नहीं, मेहमान नवाजी के तरीके के ये खिलाफ बात है कि मेहमान को तुम दरवाजे के बाहर बैठा दो और तुम घर के अंदर आ गया। अल्लाह अकबर। जाओ और फौरन मेहमान को अंदर बुला करके लेके आओ। अल्लाह अकबर। जब वो नौजवान माँ से इजाजत ले लिया ना, उसके बाद अब दरवाजे पे आता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बरगाह में अर्ज करता है कि जनाब आप अंदर चलिए, माँ ने मुझे इजाजत दिया है कि आपको अंदर लेके आऊं, आप यहाँ ना बैठे, आप अंदर चलिए। अल्लाह अल्लाह। अब जाकर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह से वो नौजवान बोलता है थोड़ी देर के बाद, जनाब आप अभी खाना खाएंगे या थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे? आप अभी खाना खाएंगे तो अकेले खाना होगा, बाद में खाएंगे तो मेरे साथ खाना होगा। मूसा कलीमुल्लाह की और फिक्र बढ़ गई और अब सोचने लग गए कि या अल्लाह मामला क्या है कि अभी खाऊंगा, अगर अभी खाऊंगा तो अकेले खाना होगा, बाद में खाऊंगा तो इसके साथ खाना होगा, मामला क्या है? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि आखिर मामला क्या है कि तुम कह रहे हो कि अभी खाना है तो अकेले खाना पड़ेगा, बाद में खाना है तो मेरे साथ खाना होगा। कहा कि अब आप ही मुलाहिजा फरमा लो। कहा कि जनाब ए नौजवान मैं बाद में खाना खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक कोने में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अब नक्लो हरकत पे नजर डाली नौजवान को। अब देखो मेरे मिल्लत को नौजवानों, आओ अब तेरा सा तवज्जो फरमाओ। वो भी एक नौजवान है, तुम भी एक नौजवान हो, वो भी अपनी माँ का एक बेटा है, आप और हम भी अपने माँ का एक बेटा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो माँ जो बिस्तर से अपने आप उठ के बैठ नहीं सकती, वो माँ जो बिस्तर पे बैठी बैठी अपने हाथ से निवाला अपने मुंह में डाल भी नहीं सकती, इतनी ज़ईफ़ा है वो माँ, इतनी बूढ़ी है वो माँ, इतनी उम्र रसीदा है वो माँ, इतनी कमजोर है वो माँ। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और लेटे लेटे खाना भी खाती है, लेटे लेटे पानी भी पी रही है। अल्लाह अकबर। और घर में उसका वही एक नौजवान बेटा है। अल्लाह अल्लाह। अब वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर और सालन कटोरे में लेकर आता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों तुम भी जरा तवज्जो फरमाओ। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, वो नौजवान आया, रोटी का टुकड़ा निकाला। अल्लाह अकबर। माँ के मुंह में एक दांत नहीं है, रोटी चबा नहीं सकती है, चावल चबा नहीं सकती है, न रोटी चबा सकती है न वो चावल चबा सकती है। अल्लाह अल्लाह। अब वो नौजवान रोटी का टुकड़ा शोरबे में डुबाया, अपने मुंह में डाला। माँ के मुंह में नहीं डाला, कहाँ डाला? अपने मुंह में डाला। नौजवानों आप मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, अब तुम मेरी तरफ थोड़ा सा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं जो भी गुफ्तगू करूंगा अपने नौजवानों के लिए और अपने नौजवानों से मैं खिताब कर रहा हूं, बाकी लोगों से खिताब करने के लिए हमारे बेशुमार खतीब और खुतबा यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो नौजवान रोटी का टुकड़ा शोरबे में डुबाया, अपने मुंह में नवाला डाला, चबा चबा कर चबा चबा कर चबा चबा कर जब बिल्कुल महीन हो गया, जब नर्म नाजुक हो गया, अब वो अपने मुंह से निकाल कर माँ के मुंह में डाल रहा है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, वो एक बेटा है, वो एक अपने माँ का लाल है, वो अपने माँ का लख्त जिगर है, वो अपने माँ का कलेजा का टुकड़ा है। कसम खुदा की अब वो अपने माँ को ये अपने मुंह का चबाया हुआ लुकमा निकाल कर माँ के मुंह में डाल रहा है ताकि माँ को निगलने में आसानी हो जाए, माँ को खाने में परेशानी न हो, माँ को कोई तरद्दुद का सामना न करना पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। रोटी का टुकड़ा शुरुआ में डुबाता है, अपने मुंह में डालता है, अपने दांतों से चबाता है। जब उबरने वाला बिल्कुल बिल्कुल महीन हो जा रहा है, बिल्कुल आटे की शक्ल में हो जा रहा है, फिर अपने मुंह से निकाल कर माँ के मुंह में डाल रहा है। थोड़ा देर तक ये मंजर चलता रहा। माँ ने कहा बस बेटा अब पेट भर गया, रहने दे मेरे लाल, अब पानी पिला दे। बेटा ने कहा हाँ माँ अभी पानी पिलाता हूँ। फौरन पानी गिलास पेश किया, माँ ने पानी पी लिया। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा अब रहने दे, अब जरा सा मेरा मुंह धुला दे। हाँ माँ मैं अभी धुलाता हूँ। फौरन बेटे ने अपने माँ का चेहरा धोया, अपने माँ का मुंह को धोया। माँ ने कहा बेटा अब जरा सा लेटा दो। हाँ माँ मैं अभी लेटा देता हूँ। फौरन नौजवान माँ को उनको बिस्तर पे लेटाता है। माँ ने कहा बेटा जरा सा एक चादर डाल दो। हाँ माँ मैं अभी चादर डाल देता हूँ। अब उसके बाद माँ ने कहा बेटा जरा सा बत्ती को ऑफ कर दो। हाँ माँ मैं अभी ऑफ कर देता। अल्लाह अल्लाह। अब जब जैसे ही बत्ती ऑफ हुई माँ ने कहा बेटा जा अब तू भी खा ले और तेरा जो साथ मेहमान आया है उसको भी खाना खिला। बेटा
अब क्या तू भी खाना खा ले और अपने आए हुए मेहमान को भी साथ में बैठा कर खाना खिला ले। ए मेरे मिल्लत के नौजवान, कसम खुदा की, जैसे ही बेटे ने बत्ती को ऑफ किया, चिराग को गुल किया, जैसे ही नौजवान बेटे ने उस रूम का, उस कमरे की बत्ती को बुझाया, अल्लाह कसम खुदा की, वो माँ ममता की मूरत होती है, वो माँ ममता की ताजमहल कहिए तो भी कम है, वो माँ है कसम खुदा की। जैसे ही बेटे ने अंधेरा किया रूम में, माँ ने अपना आंचल फैला दिया। माँ ने क्या किया? बोलो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बोलो बोलो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, बोलो। कसम खुदा की, सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेकर जाओ और ये पैगाम लेकर जाओ कि अगर बरसों की रूठी हुई मेरी माँ है तो आज मैं जलसे से जब पहुंचूंगा अपने घर तो मैं अपनी रूठी हुई माँ को मना कर गले से लगा लूंगा। अगर मेरा बरसों का रूठा हुआ बाप है तो उसके कदमों पर झुक जाऊंगा और उसके सामने दोनों हाथ को जोड़कर और उस बाप को मनाकर अपने सीने से लगा लूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिस औलाद से माँ और बाप राजी हो गए, कसम खुदा की जन्नत उसकी जागीर हो जाती है। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। जिस औलाद से, चाहे वो बेटा हो या बेटी, जिस बेटा या बेटी से माँ बाप राजी हो गए, उसके मरने के बाद कसम खुदा की मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे में जन्नत है। अब बाप उसका दरवाजा है तो उसने बाप को सीने से लगाया है और माँ को भी कलेजे से लगा लिया है, तो जन्नत तो उसकी जागीर हो गई। अब जरा सा मुलाहिजा फरमाओ, तो बच्चों के साथ थोड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे ही बेटे ने बत्ती को बुझाया, माँ ने अपने आंचल को फैलाया और आंचल को फैला के दुआ करती है, परवरदिगार मेरे माबूद, ये मेरे खालिक व मालिक, मेरे अल्लाह अल्लाह, मेरा बेटा जो मेरी इतनी खिदमत करता है, अपने माँ की खिदमत के सिला में मेरे बेटे का हसर मेरे नबी मूसा के साथ साथ है। सुभान अल्लाह। कह दो तरफ के जरा सुभान अल्लाह। माँ ने क्या दुआ मांगी? माँ ने आंचल फैलाकर, अपना आंचल उठाकर, मेरे दोस्तों क्या दुआ मांग रही है? जैसे ही अंधेरा हुआ ना, माँ ने कहा परवरदिगार या अल्लाह, मेरा बेटा जो मेरा खिदमत करता है, कसम खुदा की, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा मेरा दिल जीत लिया है। मेरे मौला, मेरे बेटे का हसर मेरे नबी मूसा कलीमुल्लाह के साथ करना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ गए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह राज और जो फलसफा था उसे अब आप आगाह हो गए। अल्लाह अकबर। आपने कहा अरे बाप, इस नौजवान का इसमें कमाल नहीं है। अल्लाह ने जो फरमाया कि तेरा हसर मैं फला कसाई, फला गोश्त बेचने वाले के साथ करने वाला हूँ, तो इस नौजवान का इसमें कोई कमाल नहीं। अरे इसमें कमाल तो माँ की दुआ की है, मुझे कहने दिया जाए। अरे माँ की दुआ का जब ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हौसल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मुझे कहने दिया जाए कि जब माँ की दुआ का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुआ का आलम क्या होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुआ चाहता हूँ, एक मतलब प्यार से दरूद पाक सुनाइए। मैं हदीस मोहब्बत से आपको सुनाता हूँ, पढ़िए जरा सा दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नमादनी जुद वल करम वाली वसल्लम सल्लल्लाहु। अपने मुस्तफा जाने रहमत का करम देखना है। ये मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपने मुस्तफा की मोहब्बत अपनी उम्मत से मुलाहजा करना चाहते हो, अब जरा सा मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के साथ फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। रब के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने तमाम जहान से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, अजीज से, अकारीब से, खेस से, रफ्त से, अकरबा से, दौलत से, शरवत से, शाह से, जलाल से, हसन से, इनसे, हर चीज से मुझको ज्यादा मोहब्बत न कर, या मुझसे ज्यादा मोहब्बत। मेरे दोस्तों, इस मोहब्बत की मिसाल बस एक मिसाल देकर रुखसत हो जाना चाहूंगा। हमारे तमाम के तमाम खुतबा मौजूद हैं और वो इस इंतजार में है कि इजहार कब जाए कि हमारी बारी आए। एक मर्तबा कह दीजिए जरा सा सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक लौता बेटा माँ बाप का, मुफ्ती साहब सुबह, माँ का एक लौता बेटा,
बुढ़ापे का सहारा बेटा, बुढ़ापे का डंडा बेटा, बाप का वो सहारा बेटा, एक लौता बेटा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, जिस माँ बाप के एक ही बेटा, अल्लाह कसम खुदा की, और उस बेटे का भी इंतकाल हो जाए, अब उस माँ के दिल से पूछो, उस बाप के कलेजे से पूछो, उस माँ के दिल पर कितना बड़ा कोहे हिमालय टूट गया होगा। उस बाप के दिल से पूछो, उस बाप के दिल के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया होगा, कसम खुदा की। लेकिन ऐसे माहौल में मुफ्ती साहब किबला ने उस बेटे की जनाजा पढ़ा दिया। तमाम आप लोगों ने मिलकर उसे दफन भी कर दिया, मट्टी भी डाल दिया। अब उसके बाद जब कब्रिस्तान से वापस आए, कहीं पे माँ रो रही है, कहीं पे बाप रो रहा है, कहीं पे भाई रो रहे हैं, कहीं पे बहनें रो रही हैं, कहीं पे दोस्त रो रहा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान चाहिए, तमाम उसके खेशो अकारिब रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे कहने दिया जाए, जैसे ही मैंने माँ के आंखों में सावन भादों के तरह बरसते हुए टपकते हुए आंसुओं को देखा, मुझसे न रहा गया। मैंने कलाई थामा माँ का और पूछा कि माँ, अरे तुम उस नौजवान की माँ हो ना? कहा कि बेशक मैं माँ हूँ। कहा कि तेरा वो एकलौता बेटा था ना? कहा कि हाँ मेरा बेटा था। अरे तूने अपने खूने जिगर को पिलाकर, अपने सीने के दूध को पिलाकर उसको परवान चढ़ाया था ना? हाँ मौलाना मैं परवान चढ़ाया था। उसको शबाब तूने बख्शा था ना? हाँ मैंने बख्शा था। उसकी शादी भी तूने कराई थी? हाँ मैंने कराया था। उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तूने पढ़ाया था? हाँ मैंने उसको डॉक्टर बनाया था। आज तो वो दुनिया से चला गया। कहा कि हाँ मौलाना चला गया। मैंने कहा कि सुनो, मैंने सुना है अल्लाह अकबर कब्र की तीनों तारीख कोठरी में तेरा बेटा, जैसे आम कब्रों का मामला है वैसे तेरे बेटे का साथ भी अगर ऐसा हो गया कि अंधेरी कोठरी के अंदर तेरा बेटा तेरे तन्हा अकेला पड़ा है, ए माँ, ए बूढ़ी माँ, तू उस नौजवान की माँ है, उसके कब्र में चली जा। वो बुढ़िया ने मुझको हाथ जोड़ के अर्ज किया, मौलाना आप जो कहो करने को मैं तैयार हूँ। उसके नाम पे अल्लाह अकबर खैरात करने को तैयार हूँ। उसके नाम पे मैं रोजा रखने के लिए तैयार हूँ। ईसा वाले सवाब करने के लिए मैं तैयार हूँ। धन दौलत लुटा देने को मैं तैयार हूँ, लेकिन कब्र में नहीं जा सकती। मैंने कहा कि तेरा वो अपना बेटा नहीं था? कहा कि मेरा बेटा तो था, मगर शरीयत मुझको इजाजत नहीं देती, मुर्दे के कब्र में जिंदा नहीं जा सकता। बाप के दामन को मैंने पकड़ा, ए बाप तो मुस्लिम जवान का बाप था? कहा कि हाँ बाप था। तेरा बेटा तने तन्हा अकेले कब्र की तारीख कोठरी में अल्लाह अकबर वहां पे मर रहा है, लेकिन तू यहाँ दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर, अरे जा अपने बेटे के कब्र में चला जा। बाप ने हाथ जोड़ के कहा, बर्दाश्त मौलाना, जो कुछ कहो इसके अलावा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के कब्र में नहीं जा सकता। मेरे मिलत का नौजवान हूँ। अब जैसे ही भाई पे मेरी नजर पड़ी, मैंने भाई को कहा, अरे वो तेरा भाई था, तुम अपने भाई की मोहब्बत का बड़ा दम भर रहा था, तेरा भाई अकेले कब्र में चला गया। अल्लाह अल्लाह, जाओ, पता नहीं उसे बिच्छू डंक मार रहे होंगे, पता नहीं उसे सांप कट रहे होंगे। ए भाई, तो तुम्हारा वो भाई था, तुमसे छोटा था, आज वो तन्हा कब्र में है। तू अपने भाई की मदद के लिए, तू अपने भाई कमजोरी के लिए उसकी कब्र में चला जा। भाई हाथ जोड़ के कहेगा, मौलाना माफ करना, मुफ्ती रुस्तम साहब, मुफ्ती इरशादुल हक साहब, आप लोग माफ कीजिए। आप ही लोगों से मैंने सुना कि शरीयत मुझको इजाजत नहीं देती, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बेटे की कब्र में नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह, मैंने बहन को अल्लाह अकबर देखा, आंसू बहाते हुए बहन के मैंने आंचल को थाम के कहा, ए बहन, तेरा वो भाई था? हाँ मेरा भाई था। अरे उस भाई के बगैर तुम्हें एक लम्हा के लिए सुकून नहीं मिलता था। जब तक के भाई को खाता पीता न देख ले, जब तक के भाई को सोता जागता न देख ले, ए बहन तुझे करार नहीं मिलती। लेकिन तेरा भाई आज तन्हा अकेले कब्र में चला गया है, बहन तू अपने भाई के कब्र में चला जा। बहन ने हाथ जोड़ के कहा, मौलाना माफ करना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, भाई के कब्र में नहीं जा सकती। इत्तेफाक से वो शादीशुदा था, और वो बीबी जिसकी लाली लिपस्टिक के लिए, समझ गए, वो बीबी इत्तेफाक से वो शादीशुदा था और अपने बीवी की लिपस्टिक के लिए ना, उसके स्नो और पाउडर के लिए माँ से भी चोरी किया, बाप से भी चोरी किया, पड़ोसी का भी चोरी किया। रात में दुकान बंद है कस्टमर की, मगर आदमी के फोन पर फोन करके और दुकान खुलवा कर अपनी बीवी की ख्वाहिश को 11 और 12 बजे रात को पूरी कर रहा है वो नौजवान। लेकिन बगल में तेरी माँ पेट और सर के दर्द से कराह रही है, उलट के देखने को तेरे पास वक्त नहीं है। मेरे मिल्लत को नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? तेरी बीवी अपनी लिपस्टिक के लिए बोल दे कि 11 बजे रात को चाहिए तो चाहिए, स्नो और पाउडर अभी 12 बजे रात में चाहिए तो चाहिए, तो तुम रात को रात का समझो
हो, लेकिन वो माँ जिसने 9 महीने तेरे दुख दर्द को बर्दाश्त किया, अपने शिकम में तेरे बोझ को ढोती रही वो माँ, और जब तू पैदा हुआ, कसम खुदा की जो दर्द का एहसास एक माँ को हुआ है, और उसी दर्द पे नजर मदीने के ताजदार की पड़ी, तो मदीने के ताजदार अल्लाह अकबर पुकार उठे कि माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है। उसी दर्द का तो सिला मेरे मुस्तफा ने दिया। कसम खुदा की वो नौजवान, अरे माँ दर्द से करा रही है बिस्तर पे बगल के रूम में, और तू बगल के रूम में चैन की नींद सो रहा, बीवी की हर फरमाइश पूरी कर रहा है, लेकिन माँ सर के दर्द, पेट के दर्द से तड़प रही है। बिस्तर के ऊपर एक टैबलेट लाने के तेरे पास न पैसे है, न तेरे पास समय और टाइम है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? आओ आओ जरा सा करीब आओ। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, मैंने उस बहन से कहा कि बहन तेरा वो अपना भाई था, आज तन्हा कब्र की मंजिल में अकेले पड़ा हुआ है, चली जा बहन। बहन ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, मौलाना मुझको माफ कर देना। अब जब मैंने उस बीवी से पूछा, ए बीवी, अरे तुम तो उस नौजवान की बीवी है ना? कहा कि हाँ जरूर हूँ। कहा कि सुनो, तुम्हारी हर ख्वाहिश को वो रात को 12 बजे पूरा करता, रात के 2 बजे पूरा करता था। तेरा वो हस्बैंड, तेरा वो शौहर, तेरा वो सर का ताज, तेरा वो खबीर, अरे तुझको दुनिया में छोड़कर अकेले कब्र की मंजिल में, अल्लाह अकबर, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तू उसकी खातिर, तू उसकी औरत हो ना, तू उसकी वाइफ है ना, तू उसकी कब्र में चली जा। वो बीवी ऐशो आराम किया तेरे पैसे पे, ऐशो आराम किया तेरी दौलत पे, ऐशो आराम किया तेरी कमाई और तेरी सरवतों पे, लेकिन जब मैंने कहा कि तू अपने शौहर के कब्र में चली जा, तेरा शौहर अकेले कब्र में पड़ा है, तो बीवी हाथ जोड़ के अर्ज करती है, मौलाना इसके अलावा जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। कुरान खानी करा दूंगी, मिलाद खानी करा दूंगी, कट्ठा भर जमीन उसके नाम पर मैं वक्फ कर दूंगी मस्जिद मदरसा के अंदर, आप जो चाहिए ना करा लीजिए, मगर मुझको कब्र में जाने की ना बोलिए। मैंने कहा क्यों? तेरा वो अपना खामिद नहीं था, तेरा वो अपना हस्बैंड नहीं था, तेरा वो अपना शौहर नहीं था? कहा जरूर था, लेकिन मौलाना माफ करना, अरे उस शरीयत मुझको इजाजत, मैं उसके कब्र में नहीं जा। माँ अब मुझे कहने दिया जाए, मेरे दोस्तों मैं अपने असली मौजू पे पहुंच गया हूँ, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दिया हूँ। देखिए आप चाहे आप इसको समझे या ना समझे, मुझको जहाँ पहुंचाना था मैं पहुंचा दिया। कसम खुदा की, अपने मुस्तफा की अता, अपने मुस्तफा की सखा, अपने मुस्तफा की मोहब्बत, अपने मुस्तफा का प्यार, अपने मुस्तफा का अपनी उम्मत से लाड, अपने मुस्तफा के, मेरे दोस्तों अपनी उम्मत में मेहरबानी मुलाहजा फरमाओ। वो कब्र जहाँ माँ जाने से इनकार करते, वो कब्र जहाँ बाप जाने से इनकार करते, वो कब्र जहाँ भाई जाने से अपने बिरादरी का रिश्ता तोड़ दे, वो कब्र जहाँ बहनों ने अपना रिश्ता अखुवत तोड़ दिया, वो कब्र जहाँ जाने से बीवी ने मुंह मोड़ लिया, वो कब्र जहाँ जाने से माँ इनकार कर दे, वो कब्र जहाँ जाने से बाप इनकार कर दे, वो कब्र जहाँ जाने से भाई इनकार कर दे, वो कब्र जहाँ जाने से मेरा अपना फ्रेंड, अपना दोस्त, अपना यार इनकार कर दे, वो कब्र जहाँ जाने से मेरी बीवी इनकार कर दे, वो कब्र जहाँ जाने से मेरा अपना बेटा बेटी इनकार कर दे। अरे जिस कब्र में कोई नहीं जाता है तो वहाँ आमिना का लाल आता है। जहाँ सबकी मोहब्बतें दम तोड़ती हुई नजर आती है, वहाँ प्यारे मुस्तफा मुस्कुराते हुए। मेरे दोस्तों